السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عشق رومان شاہ بائی زویا علی شاہ کی ایپیسوڈ نمبر 6 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں، آپ لوگ بعد میں بھول جاتے ہیں، اور مجھے بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے اپنی لائف میں تم سے زیادہ بے شرم لڑکی نہیں دیکھی جس کو اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں۔ سچ کہتے ہیں کہ عورت جب اپنے معیار سے گر جاتی ہے تو وہ لا علاج ہو جاتی ہے۔ شاہ نے شعلہ بار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تم جان ہو میری، اور اس لڑکی کی بکواس کا تم پر اتنا اثر ہو رہا ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر مجھے اذیت دے رہی ہو۔ رومان شاہ نے آگے بڑھ کر بنا کسی کا لحاظ کیے میرب کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے باہوں میں کس لیا۔ چھوڑے مجھے، اگر میری اتنی ہی فکر ہوتی تو اس 2 ٹکے کی لڑکی کو لا کر میرے مقابل کھڑا نہیں کرتے۔ یہ سب کرنے والے آپ ہیں، ورنہ اس کی کیا اوقات تھی کہ مجھے کچھ کہتی۔ میرب نے شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے زور سے دھکا دیتے ہوئے پیچھے کیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاہ میرب کو اس گستاخی کی سزا ضرور دیتا، مگر اس وقت وہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح تھی۔ شاہ کو اس کی بات کا پورا احساس تھا۔ میرب، تمہیں مجھ پر غصہ ہے، نکالو، مگر رونا بند کرو۔ تمہاری آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو مجھے بہت اذیت دیتے ہیں۔ چیخو چلاؤ، جو کرنا ہے کرو، مگر رونا بند کرو۔ میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ شاہ کی محبت جو میرے لیے آخری حدوں کو چھو رہی تھی، دیکھ کر اشال کے جلسے سے بھرے دل کے انگاروں پر باربیکیو بن رہے تھے۔ جس کے جب اس کے نصیب میں رونا لکھا ہے تو رونے دیجیے نا، یہ روتی ہوئی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ ایک بانجھ عورت جو اپنے شوہر کو اولاد کا سکھ نہ دے سکے، وہ سوائے رونے کے کر بھی کیا سکتی ہے؟ اشال سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ شاہ میرب پر اپنی جان وارتے ہوئے اسے کسی بھی طرح چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اشال شاہ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے میرب پر ایک اور جلن سے بھرپور طنز مارا، مگر اب کی بار تیر پلٹ کر اسی کو لگنے والا تھا۔ بازی پلٹ چکی تھی، اشال کو لگا کہ اس نے میرب کو توڑ دیا ہے، اب وہ خود کبھی کو سمیٹ نہیں سکے گی۔ مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی، وہ کوئی عام لڑکی نہیں، میرب رومان شاہ تھی، رومان شاہ کی بیوی اور ریسیپی شاہمیر ملک کی بہن، جسے گرا کر اٹھانا بہت اچھی طرح سے آتا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں روتے ہوئے زیادہ اچھی لگتی ہوں؟ شاہ کے بولنے سے پہلے میرب بول اٹھی تھی۔ ہاں، تم روتے ہوئے اچھی لگتی ہو، تم اسی لائق ہو۔ اور اچھا، اور تم کس لائق ہو یہ تمہیں میں بتاتی ہوں۔ تم انتہائی گھٹیا قسم کی لڑکی ہو جس پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تم اتنی ڈھیٹ ہو کہ اپنی انسلٹ کو بھی محسوس نہیں کر سکتی۔ تمہارے اندر غیرت، شرم و حیا کی ایک بوند بھی باقی نہیں ہے، اگر ہوتی تو ضرور محسوس کرتی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم شاہ سے نکاح کر کے اس کے ساتھ رہ رہی ہو تو وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ بے وقوف کمعقل لڑکی، شاہ تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ مجھے شاہ سے لاکھ اختلافات نہیں، مگر میں ایک بات بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ ان کی جان بستی ہے مجھ میں۔ میری جگہ یہ اگر خود چاہے بھی تو کسی کو نہیں دے سکتے۔ اگر تم میں تھوڑی سی بھی غیرت ہو تو تمہیں یہاں رکنا نہیں چاہیے۔ یہ گھر میرا ہے، یہ لوگ میرے ہیں، اور پورے کا پورا رومان شاہ میرا ہے۔ مگر اتنی بے غیرتی کروا کر، سب کچھ جان کر بھی تم جاؤ گی نہیں، کیونکہ تمہارے اندر تو غیرت ہی نہیں ہے۔ غیرت ہوگی تو میری باتوں کو فیل کرو گی۔ جتنے حق سے میرب کہ بول رہی تھی کہ پورے کا پورا رومان شائستہ ہے، سن کر شاہ کا دل تو خوشی سے ناچتے ہوئے بھنگڑے ڈال رہا تھا۔ اتنی افزائی کے بعد بھی تمہیں میرے گھر میں رہنا ہے تو رہو، مگر ایک بات یاد رکھنا، آج کے بعد مقابلہ ٹکر کا ہوگا۔ اگر آج کے بعد تم مجھے بانجھ کہنے کی جرات کی تو تمہاری کھال ادھیڑ دوں گی، اور یہ دھمکی نہیں ہے، میں سچ میں ادھیڑ سکتی ہوں۔ بچپن سے اپنے بھائی کو مشروموں کی کھالیں ادھیڑتے دیکھتی آئی ہوں، تو اتنا تجربہ تو ہو گیا ہے کہ کھال آسانی سے کیسے اتاری جاتی ہے۔ میرب نے ایشان کے بال مٹھی میں سختی سے جکڑ رکھے تھے۔ ایشان درد سے کراہتے ہوئے بالوں کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں میری بانجھ کہنے پر تمہیں اتنی آنکھ کیوں لگ رہی ہے، جبکہ یہ بات تو تم چیخ چیخ کر اپنے منہ سے اعتراف کرتے ہوئے شاہ کو بتا رہی تھی۔ اچھا، تو تم چوری چپکے ہماری باتیں سنتی ہو۔ آج کے بعد اگر کان لگا کر کوئی بات سننے کی کوشش کی تو کان میں تیزاب ڈال دوں گی، پھر کچھ بھی سننے کے لائق ہی نہیں رہوگی، سمجھی تم؟ وہ جھٹکا دے کر اس کے بالوں کو چھوڑ چکی تھی۔ اشال کی نوکروں کے سامنے ہی بہت عزت افزائی ہو چکی تھی،
न चाहते हुए भी इसकी आंखें नम हो गई थी। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने रूम जा रही थी, मगर शाह की आवाज़ पर उसके कदम सीढ़ियों के एंड पर जा रुके थे। मेरी जान का अगर गुस्सा ठंडा पड़ गया हो तो रूम में जाकर आराम करो, मुझे ज़रूरी काम से जाना है। शाह ने प्यार भरी निगाहों से देखते हुए बहुत नरमी से कहा, तो जाए, किसने रोका है? वो गुस्से से देखते हुए बोली। जान, शाह को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? शाह के लबों पर मुस्कुराहट, जानलेवा मुस्कुराहट थी। मीरब की बात पर शाह का मुस्कुराना सीढ़ियों पर खड़ी हुई इशार के खून को जला रहा था। मेरी हर बात को बदतमीजी का नाम देकर मेरी इंसल्ट कर देते हैं, और यहाँ जो बदतमीजी कर रही है इसकी मोहब्बत भरी नज़रों से नज़र उतारी जा रही है। वो दिमाग में सोचकर गुस्से से लाल पीली हो रही थी। अगर नहीं जा सकते तो फिर आराम से बैठ जाएं, नाश्ता करके जाइएगा। जो हुक्म सरकार का। ਤੁਸੀਂ हुक्म करो, ਅਸੀਂ घरों बाहर कदम भी नहीं रखिए। रुमान शाह की खुमारी नज़रों को देखकर बोले गए पंजाबी अल्फाजों की कुछ कुछ समझ मीरब को आ रही थी। अगर जो मेरी जान ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ नहीं आई तो गूगल ट्रांसलेट कर लो, जिन्हें हमेशा कर दो। मीरब के कान की लो पर झुकते हुए सरगोशी करते कान की नरम लो को बड़ी महारत से चूमकर पीछे हट गया। शाह के गरम गरम लबों के लम्स को नरमी से लो पर महसूस करते हुए इसके पूरे वजूद में सनसनाहट दौड़ गई थी। जकिया तो किचन में जा चुकी थी, मगर ये सारा मंजर इशाल सीढ़ियों पर खड़ी होकर ढीठ बनकर देख रही थी। जरा सोचें कि इसकी हालत क्या हो रही होगी। वो सर से लेकर पांव तक जल रही थी। आपसे किसने कहा कि मैं गूगल ट्रांसलेट करती हूँ? मीरब नज़र चुराते हुए पूछ रही थी। तुम्हारा दिल बड़ी राजदारी से मुझे सब कुछ बता देता है। जाने शाह तो जितना मर्जी नाराज हो ले, पर रुमान शाह नु दिल विचों नहीं कर सकती। आप बैठ जाएं, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। शाह की खुमारी नजरों से घबराते हुए दो कदम पीछे होकर बोली। बैठ जाता यूं, मगर नाश्ता एक शर्त पर करूँगा। कैसी शर्त? तुम नाश्ता अपने हाथों से करवाओगे। इनकार करने से पहले सोच लेना, तुम्हारी सौतन ऊपर कड़ी कान लगाकर सुन रही है। अगर अपने हाथों से नाश्ता करवाओगी तो इसे बहुत ज़्यादा जलन होगी, और मेरा नहीं ख्याल कि तुम ये मौका ज़ाया करना चाहोगी। हाथ से पकड़कर झटके से खींचते हुए रुमान शाह ने मीरब को अपने करीब करते हुए कान में सरगोशी उतारते गाल पर रब रख कर दांतों की अच्छी खासी चुभन महसूस करवाई थी। मीरब ने गाल पर हाथ रखते हुए नजरें उठाकर ऊपर खड़ी शाल की जाने देखा। वह सच में मीरब को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। मीरब ने शाल को जलाने के लिए फौरन इसे शाह का हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराकर इसकी शर्ट कबूल कर ली। शाह का निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगा था। मीरब की कमजोरी जान चुका था कि वो जल्दी में आकर शाह की हर बात भी मान सकती है, और वो इशार को मुंह तोड़ जवाब भी दे सकती है। अब शाह ये मौका ज़ाया कैसे कर सकता था? आज 2 साल के बाद इसे अपनी जान के हाथ से नाश्ता करना नसीब होगा, यही सोचकर इसका दिल खुशी से झूम रहा था। इशार मीरब और शाह को ये दिखाने के लिए वो यहाँ से जा चुकी है, इसकी नज़रों से गायब हो गई, मगर वह अपने रूम में जाकर बराबर खड़ी बराबर खिड़की से इन पर नजरें जमाए हुए देख रही थी। मगर अब इशार को मीरब शाह की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी। विंडो मिरर फिक्स थी, इसका मिरर खोला नहीं जा सकता था, मगर मिरर से शाह की मोहब्बत लुटाती हुई नजरें देखकर इसके पूरे वजूद पर हजारों चूंटियों रेंगती हुई महसूस हो रही थी। वो अपनी जलन की आग में ही जल के मर रही थी। ये सच था कि जितनी मोहब्बत भरी निगाहों से शाह मीरब को देखता था, मीरब का गुरूर करना तो बनता था। वो सोचने पर मजबूर थी कि मीरब सच्ची तो कह रही थी कि साथ रहने से मोहब्बत नहीं मिली जाती। इसे कहाँ नसीब हुई थी शाह की मोहब्बत। शाह ने तो कभी नज़र भरकर इसकी जानिब नहीं देखा था। वो जब कभी भी शाह के करीब जाने की कोशिश करती थी तो शाह हमेशा ऐसे गुस्से से धुतकार कर खुद से दूर कर देता था। हमेशा इर्द गिर्द हमेशा इर्द गिर्द नौकरों की फौज रखता था, ताकि कभी भी वो दोनों अकेले ना हो। और यहाँ शाह के बार बार मीरब को छूने के लिए बेताब था, और वह कैसे मान के साथ इसके हाथ को झटक कर दूर कर रही थी। इसे मान था कि वो जितनी बार भी शाह के हाथ को झटकेगी, शाह फिर भी इसे अपने करीब करने की कोशिश करेगा। इसके चेहरे पर शाह की मोहब्बत का गुरूर नजर आ रहा था। जब बीवी शाह की नज़रों में अपनी अहमियत जान लेती है, इसी सूरत में बीवी अदाएं भी दिखाती है, और नखरे भी। हमेशा अदाएं और नखरे वहां दिखाए जाते हैं जहां मुकाबिल इसके नखरों को पलकों पर बिठाने के लिए तैयार हो। मीर को देखते और सोचते हुए बेख्तियार इशाल की आंखों से आंसू निकलकर रुखसार भी होने लगे। जकिया, जी भाभी, शाह का नाश्ता रूम में भेज दीजिए, ये रूम में नाश्ता करेंगे। जी भाभी जी, अभी लेकर आए। बगैर शाह से पूछे मीरब अपना फैसला सुनाकर उठकर रूम में आ गई। शाह भी मीरब के फैसले पर सर झुकाता हुआ मीरब के साथ ही रूम में आ गया था। रूम में नाश्ता क्यों? तो डाय रूम में नाश्ता क्यों? मैं तो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करना चाहता था, वो भी तुम्हारे हाथों से। शाह ने रूम में आते ही दरवाज़ा बंद करके सवाल किया।
मैं आपको अपने हाथों से नहीं खिला सकती और नीचे बैठकर अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी, इसलिए रूम में नाश्ता मंगवाया है। आपके अपने हाथ सलामत हैं, अपने हाथों से ज़हमत दीजिए और नाश्ता कीजिए। जब इतनी नाराज़गी, इतना गुस्सा था, तो नीचे ईशान के सामने इतनी मोहब्बत और प्यार भरे जुमले बोलने की क्या ज़रूरत थी? शाह ने भारी कदम उठाते हुए मीरब के करीब हो रहा था। मीरब शाह की दूरी बरकरार रखने के लिए पीछे को होती दीवार से जा लगी। मजबूरी थी, वो जितनी प्यार बरसाती हुई नज़रों से आपको देखती है, मेरा बस चले तो मैं इसकी जान ले लूं। जब तुम मुझ पर मोहब्बत भरी निगाह नहीं डालोगी तो लोग तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। शाह दोनों हाथ इतराफ में रखे हुए खुमारदार नजर से देखते हुए बोला, उठाकर दिखाएं वो फ़ायदा। इसका गला तो बाद में दबाऊंगी, पहले मैं आपका गला दबाकर मारूंगी। मारूंगी ना रहेंगे आप, और ना आप पर मोहब्बत लुटाती नजरें डालेंगी। मीरब ने शाह की आंखों में आंखें डालकर धमकी दी। मीरब बदतमीजी नहीं, शाह ने सड़ लहजे से कहा, मैं तो करूंगी बदतमीजी, जो कर सकते हैं कर ले। अच्छा यूं तो फिर ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਹੀ। चल आ मैं तेनू दसा कि मैं की कर सकना। मीरब की मखमली गर्दन पर शाह ने दांत काटते हुए बदतमीजी का बहुत अच्छा बदला ले लिया था। छोड़े मुझे, 2 साल तक छोड़कर देख लिया है, बहुत ज्यादा सरकश हो गई हो, और अब और नहीं छोड़ सकता। मीरब की कमर में हाथ डालते हुए प्यार से इसे अपने सीने से लगा रखा था। इससे पहले कि शाह का बेलगाम दिल अपनी मनमानियों पर उतरता, जकिया दरवाजे पर नाश्ते की ट्रॉली लेकर खड़ी थी। दूसरी बार दरवाज़ा खटक चुका था। जाओ दरवाज़ा खोलो और शुक्रिया अदा करो सकिया का। किस लिए? इसने सही टाइम पर आकर तुम्हारी सज़ा में कटौती करवाई, वरना बड़ी वरना बदतमीजी की सज़ा तुम्हें सुबह सुबह देने का इरादा रखता था। मीरब शाह की बातों का मफहूम समझकर तेजी से शाह के बाजों के दायरे से नीचे होते हुए दरवाज़ा खोलकर सकिया से ट्रॉली ले चुकी थी। कहाँ जा रही हो? मीरब शाह के नाश्ते की ट्रॉली सोफे के आगे रखकर खुद बेड की जानिब बढ़ गई थी। बैठने लगी हूँ, क्या बैठने पर भी पाबंदी आयद है? वो अपनी घबराहट को छुपाते हुए बेड पर बैठ चुकी थी। आकर मुझे नाश्ता करवाओ और खुद भी करो। रोमांचा का अंदाज वही पुराना था, रोबदार गरजदार। आप अपने हाथों से नाश्ता करें, मैं आपको नाश्ता नहीं करवाऊंगी। आखिरी बार बुला रहा हूँ, वरना यहाँ तक लाने के मुझे और भी बहुत से तरीके आते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें मेरा कोई और अंदाज पसंद आएगा। शाह टांग पर टांग रखे हुए बैठा हुआ बहुत चांस में नजर लग रहा था। क्या मुसीबत है, हर बात में जबरदस्ती करने की आदत हो गई है। वो बड़बड़ाते हुए उठकर सोफे पर धड़ाम से आकर बैठ गई थी। मीरब की झंझलाहट और घबराहट पर शाह के लब मुस्कुरा रहे थे। मीरब, खाना खाओ और मुझे भी खिलाओ। खाना नहीं, ये नाश्ता है, पहले जुमले तो ठीक कर लें। तुम सामने हो, तुम जुमले ठीक हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम नाश्ता को खाना समझकर खिला दो और खुद भी खाओ। शाह ने हाथ की पुश्त मखमली गर्दन पर दिए हुए निशान पर रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, मुझे भूख नहीं है। मैंने कहा है ना, तो खाना पड़ेगा। जब खाओगी तो भूख लग जाएगी। जब मैं कह रही हूँ कि मुझे भूख नहीं है, तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं? वो झुंझलाकर शाह से थोड़ा सा दूर होकर बैठ गई थी। मैं तो ज़बरदस्ती करूँगा। तुमसे ज़बरदस्ती करने का पूरा हक है मुझे, और छोड़ दो ये दूरियां बनाना। ख़त्म कर दिए हैं मैं है रात को मैंने सब फासले। दोबारा बनाने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। मीरब की कमर पर हाथ रखते हुए झटके से वापस अपने करीब कर चुका था। शाम में आपके लिए क्या? वरना आंखों से इसकी जानिब देखते हुए बोली, शाह की जान। वो मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए बोला, झूठ। वो बेयकीनी से देख रही थी, जाने शायद इतनी बेयकीनी इतनी अच्छी नहीं होती। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। तो फिर क्यों क्यों आपने मेरी जगह इस शाल को दे दी? तुमने नीचे कहा था कि तुम्हारी जगह किसी को चाहूं तब भी नहीं दे सकता। इस बात पर कायम रहो, हकीकत वही है। मैं जानती हूँ आप मेरे सिवा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते, तो फिर क्यों आपने इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया? शाह प्लीज़ बताएं, जब मोहब्बत नहीं दी तो फिर वो आपके बच्चे की माँ कैसे बनने वाली है? शाह जवाब दे, सच्चाई क्या है? बता दे, मैं जानती हूँ कुछ तो ऐसा है जो मेरी नज़रों से ओझल है। जब जानती हो कि कुछ मिसिंग है तो खामोश क्यों नहीं हो जाती? मैं चुप नहीं हो सकती, आपको बताना पड़ेगा। नहीं बता सकता, माफ कर दो। शाह का दिल भरा मुझे इतना बड़ा जख्म देके। मैं तो रायन के सदमे से आज तक बाहर नहीं आई, और आपने मेरा कलेजा चीरकर मेरी जगह किसी और को लाकर बिठा दिया। शाह, आपको मुझ पर रहम नहीं आता, तरस नहीं आता? मेरे अपनी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। शाह इस पागल लड़की को कैसे बताता कि इसकी आंखों से गिरता हुआ हर आंसू उसके दिल पर गिरकर वहां पर एक नया जख्म देता कर देता है। आप जानते हैं कि जब वो कहती है कि वो आपकी बीवी है, मेरा दिल करता है मैं इसकी जान ले लूं। शाह, मुझे ऐसे लगता है मेरा सारा जिस्म आग की लिपटों की जद में आ चुका हो। शाह, सच में आपको मेरी तकलीफ नजर नहीं आती, या आप देखना नहीं चाहते? तुम्हें क्या लगता है कि शाह बिल्कुल सुकून में है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तकलीफ में नहीं हूँ? जब तुम जलती हो तो शाह भी तुम्हारे साथ बराबर जलता है। जब तुम्हारा दिल तड़पता है तो शाह का दिल सुकून में कैसे रह सकता है? मगर हालात और मजबूरियां इंसान से वो सब करवा देती हैं जिसका कभी हम सोच भी नहीं सकते।
मैं यही तो जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको इससे शादी करनी पड़ी। वो कैसे तड़प कर शाह की दोनों गालों पर हाथ रखकर पूछ रही थी। एक लम्हे को शाह का दिल चाहा कि वह अपनी जान को सब बता दे, मगर दूसरे ही लम्हे दिल पर दिमाग पर हावी होकर इस सोच को रोक चुका था। मीरत, नाश्ता करो। इससे पहले कि मीरत के आंसू में शाह बह जाता, इसने सर को झटकते हुए मौजू बदल दिया। शाह ने निवाला बनाते हुए मीरत के मुंह के आगे किया। मीरत रो रही थी, मगर शाह इग्नोर करके इसे नाश्ता खिलाने की कोशिश कर रहा था। मीरब ने अपना सारा गुस्सा शाह के हाथ पर शाह के हाथ पर दांत गाड़ते हुए जोर से काट कर उतारा था। जालिम लड़की, नाश्ता खाने को कहा है, तुमने तो मेरा हाथ ही खा लिया। दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? मीरब ने तंजिया निगाहों से देखते हुए कहा। नहीं, ये लो। शाह ने अपना दूसरा हाथ आगे कर दिया। क्या करूं? मीरब ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। इस पर भी काट लो, शायद तुम्हारा गुस्सा कम हो जाए। तुम एक काम करो, मेरे पूरे जिस्म पर दांतों से काट कर इतने निशान डालो कि कई दिनों तक इसमें से खून रुकना नहीं चाहिए। तुम्हें जिस तरह से राहत मिलती है वो राहत हासिल कर लो। तुम्हें तड़पता हुआ देखना रोमांचा के लिए सबसे मुश्किल काम है, मगर बेबसी कि तुम्हें तड़प से बचा नहीं सकता हूँ। शाह, मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपकी मोहब्बत पर रश करूँ या बेवफाई पर सर पीटूं। शाह के हाथ को दर्द भरी निगाहों से देखते हुए बोली। शाह के मजबूत गोरे बालों से भरे हाथ पर मीरब के दांतों की छाप से खून रिस रहा था। वो जल्दी से उठकर फर्स्ट एड बॉक्स लेने जा रही थी कि शाह ने हाथ से खींचकर वापस बिठा लिया। अगर ड्रेसिंग का सामान लेने जा रहे हो तो ज़रूरत नहीं। ये मेरी जान शाह का दिया हुआ निशान है। इस लम्स को मैं पायोडीन की बदबू में बदलने नहीं दूंगा। अब ये मेरा है और मेरा ही रहेगा। वो मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए जख्मी दांतों की छाप वाले हाथ को लबों से लगाते हुए चूम दिया। इतना प्यार करते हैं मुझसे? वो प्यार से देखते हुए बेख्तियार बोली। सजना, प्यार दी इंतहा न पुछ। जे मैनू 2 दिन दी बादशाहत मिल जावे ते पूरे रियासत विच तेरी तस्वीर दे सिक्के चला दिए, पर मेरे महबूब दे उत्ते किसी दे नजर न पवे। कसम खुदा दी सिक्के बना के रुकवा दे। तशरी, महबूब, प्यार की इंतहा मत पूछ। अगर मुझे 2 दिन की बादशाहत मिले, पूरे मुल्क में तुम्हारी तस्वीर के सिक्के चला दें, मगर मेरे महबूब पर किसी की नजर न पड़े। खुदा, कसम खुदा की, इस डर से बिना इस डर से बनाकर रुकवा दे। मीरब को कुछ खास समझ में नहीं आया, क्योंकि शाह के बोले हुए अल्फाज ठोस पंजाबी में थे और इतनी मोहब्बत और गहराई से बोले गए कि मीरब को तो इतना समझ सकती थी कि शाह ने इसके लिए बहुत प्यारा कहा है, मगर क्या वो नहीं जानती थी। मीरब में और हिम्मत नहीं थी शाह को टॉर्चर करने की। अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मीरब शाह को नाश्ता करवा रही थी। मीरब की आंखों में देखकर पूरी तरह से मोहब्बत के समंदर में डूबा हुआ था। कैसे हो? शाहमीर ने आगे बढ़कर रुमान शाह से मुसाफा करते हुए पूछा। शुक्र है अल्लाह की ज़ात का, जितने में रखे खुश रहना चाहिए। रुमान शाह और शाहमीर अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ चुके थे। मीरब ठीक है? इतना ठंडा रिस्पॉन्स क्यों है? खैरियत? शाहमीर को फिक्र हो रही थी अपनी शहजादी बहन की। वो अलग बात थी कि शाहमीर को सामने बैठे शख्स पर पूरा यकीन था, वह कभी इसको तकलीफ नहीं दे सकता। बस यार, इसके चेहरे पर उदासी मुझसे नहीं देखी जाती और इसको पूरी तरह से खुश करना मेरे बस में नहीं है। रुमान रुमान, तुम्हारे मुंह से ऐसी कमज़ोर बातें अच्छी नहीं लगती। रुमान, तुम बहुत चट्टान हो, जिसने ऐसी मुसीबत का सामना किया है जिसका सोचकर ही मुझ जैसे बहादुर पुलिस वाले तक का दिल कांप जाता है, और तुमने इस मुश्किल को पार करने की हिम्मत की है। मत दो खुद को अजियत। तुम मीरब को सच्चाई बता दो। क्यों सच्चाई छुपाकर इसके इसकी नफरत के मुस्तहक हो रहे हो? शाहमीर ने चाय को सिप लेते हुए कहा। नहीं बता सकता। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि औरतों के पेट में कोई भी बात हजम नहीं होती, और ये मसला बहुत नाजुक है। मैं रिस्क नहीं ले सकता। इससे अच्छा है कि इसकी नाराज़गी बर्दाश्त कर लो। इस तरह तो मीरब दिन दिन रात तुम्हें ताने देने के से बाज नहीं आएगी। बर्दाश्त कर सकोगे रोज़ इसकी नफरत भरे ताने? शाहमीर ने मतलाशी नज़रों से देखते हुए चाय का सिप भरते हुए कहा। बहुत मुश्किल है इसके ताने सुनना, और इससे भी मुश्किल है जब वो रोती है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैंने कभी नहीं सोचा कि एक दिन मुझे मीरब को ऐसी हालत में देखना पड़ेगा। वो गहरी सांस भरते हुए इधर उधर नजरें दौड़ाकर जायजा लेते हुए बोला कि कोई इनको बातें करते हुए देख या सुन तो नहीं रहा। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि इसे एतमाद में लेकर बता दो, वो समझ जाएगी। कभी भी नहीं। मैं सब कुछ बर्दाश्त करूंगा, मगर इसे बताने का रिस्क नहीं ले सकता। इसे सच्चाई पता चली तो इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी बहन है, तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए। शाह ने अतुल सा जवाब दिया। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम चाय पियो तो चाय तो पियो शाहमीर।
اس کے آگے چائے کا کپ کرتے ہوئے ترچھی نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ دونوں کیفے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رومان، ہم ہمیں یہاں سے فوراً چلنا چاہیے۔ کیوں؟ راستے میں بتاؤں گا۔ وہ دونوں فوراً وہاں سے نکل پڑے تھے، مگر جس خطرے کو شاہمیر نے محسوس کیا تھا وہ خطرہ ٹل نہیں سکا۔ جیسے ہی شاہمیر اور رومان شاہ کیفے سے باہر آئے، اس سے پہلے کہ شاہمیر رومان کو لے کر گاڑی میں بیٹھنے میں کامیاب ہوتا، اس سے پہلے ہی نشانے باز کہیں دور بلڈنگ سے ٹریگر دبا چکا تھا، جاسوس کہیں آس پاس ہی تھے۔ ایسے بھی شاہمیر ملک یہ تو جان چکا تھا، مگر رومان شاہ پر حملہ کرنے والے ہیں اس بات سے شاہمیر بے خبر تھا۔ مگر شاہ پر آج بھی اس کی ماں کی دعاؤں کا اثر تھا۔ شاہ کی جان بچ گئی۔ نشانے باز کا نشانہ نہیں چونکا تھا۔ شاہمیر اور شاہ جب تیزی سے جا رہے تھے تو راستے میں پڑے ہوئے پتھر سے پاؤں ٹکرانے کی وجہ سے شاہ لڑکھڑایا تو پوزیشن تھوڑی چینج ہو گئی۔ جو گولی سینے کے میں لگنے والی تھی وہ شاہ کے بازو کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ اس سے پہلے کہ نشانہ باز دوبارہ حملہ کرتا، پوری فورس کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ اس کے سیکیورٹی گارڈز اور شاہمیر کے پورے اہلکار اسے دیکھ چکے تھے۔ نشانہ باز کو پکڑنے کے لیے کافی لوگ موجود تھے۔ شاہمیر کو اس وقت صرف اپنی بہن کے سہاگ کی فکر تھی۔ رومان شاہ صرف اس کی بہن کا سہاگ ہی نہیں، اس کا سب سے اچھا دوست بھی تھا۔ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اس طرح مجھے چھوڑنے جاؤ گے تو میرا پریشان ہو جائے گی، اور میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ عجیب انسان ہو، بازو پر گولی لگی ہے اور میں تمہیں گھر چھوڑنے نہیں جا سکتا۔ بندے کو اتنا بھی زن مرید نہیں ہونا چاہیے۔ کتنا ڈرتے ہو یار تم میری بہن سے۔ شاہمیر دانت نکالتے ہوئے رومان شاہ کا موڈ لائٹ کر رہا تھا، کیونکہ اس وقت رومان شاہ اور شاہمیر دونوں ہی سخت پریشان تھے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی کہ کوئی ان پر سختی سے نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اتنا حادثاتی چہرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گولی سے بازو کو چھو کر گزر گئی ہے، بالکل صحیح زندہ صحیح سلامت ہو۔ بڑی مہربانی ہوگی اگر تم میرے گھر کے اندر قدم نہ رکھو تو۔ تمہاری یہ شکل دیکھ کر میری بیوی بہت پریشان ہو جائے گی، اور میں زن مرید ہوں یا نہیں یہ تمہیں بتانے کی مجھے ضرورت نہیں۔ تم جا کر اپنا گھر سنبھالو جناب، ہم تو اپنا گھر بہت اچھی طرح سے سنبھالتے ہیں۔ ہماری بیوی پر تو ہمارا حکم چلتا ہے، ڈرتی ہے وہ ہماری قدموں کی آہٹ سے۔ شاہمیر نے لمبی لمبی چھوڑنا شروع کر دی تھی۔ نہیں، میں سمجھا نہیں، مرحا تمہارے قدموں کی آہٹ سے ڈرتی ہے یا تم مرحا کے قدموں کی آہٹ سے ڈر جاتے ہو؟ رومان شاہ کا موڈ تھوڑا لائٹ ہوا تو وہ شاہمیر کی ایکٹنگ پر ہنسے بنا نہیں رہ سکا۔ نہیں، کبھی کبھی میں بھی ڈر جاتا ہوں اس کے قدموں کی آہٹ سے، مگر زیادہ تر وہی ڈرتی ہے۔ شاہمیر نے ہکلاتے ہوئے بڑی اچھی ایکٹنگ کی تو وہ دونوں کہکا لگا کر ہنس رہے تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ رومان شاہ خطرے سے باہر ہے۔ گولی بازو کو چھو کر گزر گئی تھی۔ رومان شاہ کو اس وقت بھی کوئی بھی خطرہ نہیں تھا، مگر بازو پر زخم تھا جس کو وہ اپنی جانب شاہ پر نظر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ شاہمیر کو اپنے گھر اپنے ساتھ نہیں لے کر جا رہا تھا، کہیں اس کے منہ سے کچھ پھسل نہ جائے۔ شاہمیر نے اسے گیٹ کے باہر ہی چھوڑتے ہوئے اللہ حافظ کہہ دیا تھا۔ رومان شاہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، شاہمیر گاڑی گھما کر اپنی فورس کے ساتھ واپس پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ زکیہ، تمہاری بھابھی کہاں ہے؟ بھائی بھابھی اپنے روم میں ہے، بلا کر لاؤ۔ نہیں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ذرا اشال بیوی کے روم میں جا رہا ہوں، آپ پلیز اپنی بھابھی کو مت بتائیے گا۔ جی بھائی۔ زکیہ کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی، مگر وہ مالک تھا جو وہ نوکر جی حضوری کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ رومان شاہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کے سامنے سے بہت آہستہ قدموں سے گزرتا ہوا اشال کے روم میں آ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر اشال نے دروازہ کھولا اور سامنے رومان شاہ کو کھڑے دیکھتے ہوئے اس کی تو جیسے عید ہو گئی، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، گال بلش کرنے لگے۔ شاہ آپ؟ اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ راستہ چھوڑو اور مجھے کوئی کپڑے ہیں تو چینج کرنے کے لیے دو۔ شاہ، شاید آپ بھول رہے ہیں کہ آپ نے کبھی اپنے کپڑے میرے پاس رہنے ہی نہیں دیے، آپ نے کبھی حق ہی نہیں دیا کہ میں آپ کے کپڑوں کو ہاتھ لگا سکوں۔ وہ راستہ چھوڑتے ہوئے شکایت کرتے ہوئے بولی، پلیز یہ شکوے شکایتیں بعد میں کرنا۔ ایئرپورٹ پر میری چھوٹی ہینڈ کیری ڈرائیور نے غلطی سے تمہارے روم میں رکھوا دی تھی، اسے نکالو۔ اس میں میرا کوئی ڈریس نکال کر دو، مجھے ضرورت ہے، شاہ نے ناگوار سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ شاہ اشال کے روم سے صرف مجبوری کے تحت آیا تھا، وہ خون میں خراب لباس سے اپنے کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ میرا کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ اسے گولی لگی ہے۔ اسی مجبوری کے تحت وہ اشال کے روم تک آیا تھا۔ اچھا، اس میں آپ کے کپڑے تھے؟ میں ابھی دیتی ہوں۔ اشال خوشی سے چہکتی ہوئی الماری کے نچلے حصے میں سے رکھی ہوئی ہینڈ کیری کو کھینچ کر باہر نکالنے لگی تھی کہ شاہ کو اچھا نہیں لگا کہ وہ 9th منتھ کی پریگننٹ عورت جھک کر ہینڈ کیری نکالے۔ اشال کی جگہ کوئی بھی عورت ہوتی تو شاہ یہی کرتا۔ شاہ نے اس کو ہٹنے کو کہتے ہوئے خود تھوڑا سا نیچے جھک کر رائٹ ہینڈ سے ہینڈ کیری کو باہر کھینچ لیا۔ گولی لیفٹ بازو پر لگی تھی۔ اسی وقت روم کا دروازہ دھاڑ سے کھولتے ہوئے میرا سرخ لال چہرہ لیے اندر آ گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟
میرب نے آتے ہی لال سرخ چہرے سے پوچھا تو رمان شاہ کے الفاظ کہیں دب کر رہ گئے تھے۔ شاہ سے جواب ہی نہیں دیا گیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرب اس طرح اچانک آ جائے گی۔ بیچارہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ اسے محبت میں بندش کہتے ہیں۔ نڈر شخص اپنی بیوی کے سامنے بے زبان ہو چکا تھا۔ کیا مطلب ہے، کیا کر رہے ہیں؟ شاہ آرام کرنے آئے ہیں، ان کو کپڑے چاہیے تھے، میں ان کو کپڑے دے رہی ہوں۔ اشال باتوں کو اپنے مطابق ڈھالتے ہوئے ایٹیٹیوڈ سے بولے، تم اپنی چونچ بند رکھو، اس سے پہلے کہ میں تمہاری چونچ توڑ دوں خاموش رہو، میں شاہ سے بات کر رہی ہوں اور میری بات کا جواب بھی شاہ ہی دیں گے۔ وہ اشال کو پوری طرح شٹ اپ کروا چکی تھی۔ بتائیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ میں وہ میں کیا؟ میرب شاہ کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے بولے، وہ میرا اپنا ہینڈ کیری وہ میں اپنا ہینڈ کیری لینے آیا تھا۔ کیوں؟ میرب، اس میں میرے کپڑے تھے، اس لیے ہمارے روم میں آپ کے بہت کسے کپڑے ہیں، تو ایسے کون سے خاص کپڑے تھے اس ہینڈ کیری میں جو آپ تڑپتے ہوئے اس کے روم میں لینے آ گئے؟ وہ پورے حق سے شاہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ شال کو آگ لگ گئی تھی۔ میرب کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر وہ کتنی اکڑ کے ساتھ شاہ کو لے کر جا رہی تھی، اسے شاہ پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا، جس کی میرب کے سامنے بولتی بند تھی۔ کتنی اکڑ تھی اس میں اس بات کی کہ وہ شاہ کی اکلوتی ہوتی محبت ہے۔ غرور اس کی آنکھوں سے چھلکتا تھا۔ اشال سوچ کر جل کر قطرہ قطرہ جل رہی تھی۔ قسمت آج شاہ کو پہلی بار اس کے روم میں اس طرح ہی لے آئی تھی، تو میرب کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا۔ وہ شاہ کو بازو سے کھینچ کر لے جا رہی تھی اور شاہ مسکراتے لبوں سے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ مجال ہے جو ایک بار بھی شاہ نے سے منع کیا ہو۔ وہ دور سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ میرب کو روک نہیں سکی تھی کیونکہ میرب کے اندر جو شاہ کی محبت کا غرور تھا، اس کا سامنا کرنے کی اس وقت اشال میں ہمت نہیں تھی۔ صبح ہی اچھی خاصی درگت بنائی تھی۔ میرب شاہ کو اپنے روم میں لے جا کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ اشال کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ تمہارے غرور کو ایک دن مٹی میں نہ ملا دیا تو میرا نام اشال خان نہیں۔ بہت غرور ہے نا تمہیں رومان شاہ کی محبت پر؟ اگر تمہیں شاہ کے سامنے ذلیل نہ کروایا تو پھر کہنا، تمہارا تو میں وہ حشر کروں گی کہ تم خود کی شکل دیکھنے سے بھی گھبراؤ گی۔ اشال زہر آلود خیالات ذہن میں سوچتے ہوئے خطرناک منصوبے بنا رہی تھی۔ بتائیں مجھے کہ آپ اس کے روم میں کیوں گئے تھے؟ میرب دروازہ بند کر کے شاہ کو دیوار سے لگائے ہوئے دونوں ہاتھ اطراف میں رکھے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ رہی تھی۔ میں قربان جاواں سجنا دی ادا تو خبردار خبردار، اس وقت آپ نے کچھ بھی پنجابی میں کہا مجھے سمجھ نہیں آئے گی، مگر غصہ ضرور آئے گا۔ مجھے صاف الفاظوں میں بتائیں کہ آپ اس کے روم میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر آپ کو کپڑے چینج کرنے تو ہمارے روم میں آتے، آپ کی جرات کیسے ہوئی اس کے روم میں جانے کی؟ جانے شاہ معافی دے دیجیے، غلطی ہو گئی۔ یہ مسکرا سا منہ بنا کر آپ میرے سوالوں کا جواب دیے بنا نہیں جا سکتے۔ میری جان جانا کون چاہتا ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ ساری رات سزا کے طور پر تم ایسے ہی مجھے کھڑا رکھو، ویسے ہی میری نزدیک کھڑی رہو۔ شاہ، میں آپ کی جان لے لوں گی، پلیز مجھے بتائیں آپ اس کے روم میں کیوں گئے تھے؟ میرب کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ میرب نے سختی سے شاہ کے بازو پر زور سے مکہ مارا تو بے اختیار درد سے شاہ کے منہ سے آہ کی آواز نکل گئی۔ میرب نے محسوس کیا شاہ کے بازو پر پٹی نما کچھ لگا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ میرب نے متلاشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہ فوراً سے اپنے چہرے کے زاویہ ٹھیک کر چکا تھا۔ وہ تو میرب پر ظاہر ہی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اسے تو کچھ ہوا ہے، مگر میرب نے جتنے غصے سے زخم کے اوپر مکہ مارا تھا، بے اختیار شاہ کے منہ سے آواز نکل گئی اور میرب اب بات کی جڑ تک جائے بنا پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ کچھ نہیں ہوا، مجھے بتاؤ تم کیا بول رہی تھی؟ شاہ نے اس کا دھیان بٹانا چاہا مگر وہ میرب تھی اپنی بات پر اڑ جانے والی۔ آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا ہوا ہے؟ میرب بار بار بازو پر ہاتھ رکھ کر محسوس کرنا چاہ رہی تھی وہاں گڑبڑ ہے یا نہیں، مگر شاہ میرب کے ہاتھ کو پکڑ کر گھماتے ہوئے اس کی پشت پر اپنے سینے سے لگا کے کھڑا تھا۔ پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں شال کے روم میں ہوں؟ زکیہ نے بتایا؟ نہیں۔ تو پھر کیا تمہیں الہام ہو گیا تھا؟ میں جانتا ہوں تمہاری فرما بردار زکیہ نے بتایا ہی ہوگا۔ ان کو اپنی بھابھی جان بہت عزیز ہے، میں نے منع کیا تھا مت بتائیں، پھر بھی وہ نہیں روکی۔ اس کی تو خبر میں جا کر لوں گا، اس بیچاری کی خبر لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جتنی میری فرما بردار ہو جائے آپ کے خلاف نہیں جا سکتے، اس بات کا آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ ویسے آپ کو اتنی آگ کس بات کی لگی ہے کہ زکیہ کے بتانے کی یا اس کے روم میں جا کر بغیر رومانس کیے واپس آنے کی؟ لعنت بھیجتا ہوں اس پر اور اس کے ساتھ کیے ہوئے رومانس پر، ہمیشہ خون جلانے والی بات مت کیا کرو۔ اچھا، آپ میرا خون جلانے کے لیے اس کے روم تک جا سکتے ہیں اور میں آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر لانے پر جلانے والی باتیں نہ کروں؟ استغفر اللہ، کتنی نازیبا باتیں کرتی ہو۔ رنگے ہاتھوں مطلب میں صرف اس کے روم میں اپنی ہینڈ کیری لینے گیا تھا، میں کیسے مان لوں؟ مجھے کیا پتا کیا کرنے گئے تھے؟ شاہ کی گرفت سے آزاد ہونے کی مسلسل کوشش کرتے ہوئے چھٹپٹا رہی تھی۔ جس تمہارے جاسوس نے یہ بتایا ہوگا میں اس روم میں گیا ہوں، اس نے یہ بھی بتایا کہ میں بھی
आर होगा। मुझे रूम में गए कितना टाइम हुआ था। कम से कम इतने टाइम में रोमांस का आर पढ़ना मुश्किल है। मैं तो कैसे रोमांस कर सकता था? मतलब कि टाइम मिलता तो फिर ज़रूर कर इसके साथ रोमांस करते। अस्तगफिरुल्लाह मीरा, तुम कितनी झगड़ालू हो गई हो, बात बात पर लड़ने लग जाती हो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसने बताया कि मैं रूम में गया था? आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि घर में कैमरे लगे हुए हैं। इन कैमरास में मैंने आपको आते हुए देख लिया था, मगर आपका दिल नहीं किया अपने कमरे में आने को। सॉरी सॉरी, वो भी तो आपका अपना कमरा है, मैं कैसे भूल गई, इसलिए भागे चले गए इस रूम में। अब हो गई तसल्ली कि मुझे किसी ने नहीं बताया। मेहरबानी करके मुझे छोड़े। अच्छा तो मेरी जान, तुम मेरी जासूसी करती हो, मेरे आने जाने पर नजर रखती हो। शाह ने मुस्कुराते हुए इसका चेहरा घुमाकर अपनी जानिब करते हुए मोहब्बत से देखा, प्यार से इसके माथे पर लबकुशाई करते हुए लम्स छोड़ा। शाह, आपको क्या हुआ है? मैं जानती हूँ आपको कुछ हुआ है, प्लीज बताएं, बात को मत घुमाएं, मेरी जान निकल रही है। कुछ नहीं हुआ, बाजू पर थोड़ी सी चोट लग गई है, शाह ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। चोट लग गई? कैसे लग गई चोट? दिखाएं मुझे। वो घबरा कर बोली। यही परेशानी के तासुरात तुम्हारे चेहरे पर नहीं देखना चाहता था, इसलिए नहीं बता रहा था। मैं जानता था कि तुम परेशान होगी। इसके मखमली गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए शाह ने कहा था। वो मोहब्बत बरसाती नजरों से इसकी जानिब देख रहा था। अच्छा, अपना कुर्ता उतारें प्लीज। सच में उतारूं? रोमांस करने का मूड है? शाह ने शरारती नजरों से देखते हुए कहा। ओहो, कितने ठरकी हैं आप। मैंने देखना है कि आपको चोट कितनी लगी है। ठरकी नहीं, आशिक हो। ठरकी जो होते हैं इनकी नज़रों को हर चीज़ भा जाती है, मगर आशिकों को सिर्फ अपने महबूब के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है मेरे प्यारे आशिक साहब, आप कुर्ता उतार दीजिए, मुझे आपका जख्म देखना है। और प्लीज़ मेरी बात को कोई भी गलत रंग देने की कोशिश मत कीजिएगा। मीरब जिद क्यों कर रही हो? तुम मुझे कपड़े दो, मैं चेंज करके आता हूँ। जब बता दिया है यार, छोटा सा जख्म है तो फिर क्यों परेशान हो रही हो? शाह मीरब के सामने अपनी पट्टी ज़ाहिर नहीं करवाना चाहता था। पट्टी देखकर वो समझ सकती थी कि ज़ख्म छोटा नहीं है। मीरा को एहसास हो चुका था कि जितना नॉर्मल अंदाज से शाह बता रहा था, बात इतनी छोटी नहीं थी। शाह, आपको मेरे सर की कसम, मुझे ज़ख्म दिखाएं और बताएं कि आपको चोट कैसे लगी है। अगर नहीं बताएंगे तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। शट अप मीरब, कैसी बातें करती हो? मुझे कुछ नहीं सुनना आपसे। आप बताएं मुझे क्या हुआ है। बता देता हूँ, मगर तुम्हें भी कसम है कि अगर ओवर पोजेसिव होकर परेशान हुई तो। मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर रही, आप मुझे दिखाएं क्या हुआ है। अब तो मीरब शाह का कुर्ता खुद ही उतारने पर तुली थी। शाह का बाजू दर्द से ऊपर नहीं हो रहा था। मीरब ने शाह को जबरदस्ती बेड पर बिठाते हुए साइड टेबल्स की दराज खोलते सीजर निकाली और शाह के कुर्ते का बाजू कट कर दिया। काश कभी रोमांस के लिए भी इतनी उतावली होकर सीजर का इस्तेमाल करूं, शाह ने शरारती लबों से कहते हुए आंख दबाकर हाथ मीरब की कमर पर रखते हुए झटके से अपने करीब किया था। इतना बड़ा जख्म है और हाथ कह रहे हैं थोड़ी सी चोट है? तुम्हें कैसे पता कि जख्म इतना बड़ा है? शाह ने मुस्कुराती नजरों से फिक्रमंद होती मीरब को प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया। बच्ची नहीं हूँ जितनी बड़ी ड्रेसिंग हुई है, ये कहीं से भी लग रहा है जख्म छोटा है। पागल तो नहीं हो? मैं इसे इतना भी ना समझ सकूं, प्लीज बताएं आपको चोट कैसे लगी। बहुत खुशी हुई है जानकर कि तुम आज भी मेरे लिए इतनी फिक्रमंद हो। आपसे नाराज होने का ये मतलब नहीं है कि मुझे आपकी जिंदगी की परवाह नहीं है। तो फिर सोच लो, तुम्हारी दुआओं में मुझे कुछ नहीं होने दिया। गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, छोटे छूते हुए गुजर गई। शाह ने हिम्मत करके मीरब को बता दिया, क्योंकि मीरब सच्चाई जाने बिना पीछे हटने वाली नहीं थी। क्या? आपको गोली लगी है? वो चिल्ला उठी थी। रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गोली कैसे लगी आपने? आपके गार्ड्स कहाँ मरे हुए थे? वो शाह के गाल पर हाथ रखते हुए रोते हुए पूछ रही थी। सब पास थे। शाहमीर था मेरे साथ, बस सब कुछ इतना अचानक हुआ कि संभलने का मौका नहीं मिला। मगर अच्छा हुआ ना, गोली लगने से मेरी जान की इतनी सारी मोहब्बत मुझे नसीब हो रही है। ऐसी मोहब्बत करने के लिए तो शाह मर भी सकता है। शाह, अल्लाह का वास्ता है, आज कह दिया, दोबारा मत कहिएगा। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। वो शाह से गले लग के हिचकियों से रो रही थी। तो फिर कहो कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। एक बार कह दो, जिंदगी का पता नहीं होता। कहीं तरसते तरसते शाह की सांसें साथ ही ना छोड़ते। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आप जान है मेरी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। नाराज़ होने का ये मतलब नहीं होता कि मोहब्बत ख़त्म हो गई है। मेरे को आपके सिवा दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे तो लगा था कि तुम मेरी ज़िंदगी के लिए कुछ भी दुआ नहीं करती होगी। कैसे सोच लिया कि मैं आपकी ज़िंदगी के लिए दुआ गो नहीं हो सकती? वो तड़प कर रोते हुए शाह के चेहरे को बेतहाशा चूमते हुए पागलों की तरह बोले जा रही थी। ये लम्हा सुनहरी पन्नों की कैद होने के लायक था। जानशाह अपने शाह पर फिदा हो रही थी। तो फिर क्यों मेरी जान ये कहकर दिल चलाती हो कि मेरा मुझसे तुम मेरा मुझसे नफरत करती हो?
हाँ, नफ़रत करती हूँ। रायम की माँ आज भी आपसे नफ़रत करती है, मगर आपकी मीराब आपसे नफ़रत नहीं कर पाती। क्या करूँ? मीराब आज भी आप पर अपना दिल, अपनी जान सब कुछ हार सकती है, मगर रायम की माँ आपके सामने झुकने को तैयार नहीं है। मीराब 2 हिस्सों में बटी हुई है। वो तड़प कर रोते हुए बोल रही थी। इसके दर्द को महसूस करते हुए शाह का दिल तड़प रहा था। वो झूठ भी तो नहीं बोल रही थी। सच यही था कि इसने कहा था कि अगर वो मीराब बन के सोचती तो शाह से बढ़कर कुछ नहीं था। अगर रायम की माँ बनकर सोचती तो शाह सिर्फ इसकी नफरत के लायक था। तुम सिर्फ मेरी मीरब बनकर सोचो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। आप मुझे मेरा रायम वापस ला दें प्लीज़। मैं सब कुछ खुद मैं सब कुछ खुद ठीक कर लूँगी। मैं थक गई हूँ ये दोहरी ज़िंदगी जीते जीते। कभी कभी सोचती हूँ काश ये सब ख्वाब हो और मेरी झटके से आँख खुल जाए। काश कभी ऐसा हो सकता हम पहले की तरह रायम के साथ हंसते खेलते ज़िंदगी बसर करें। काश कभी ऐसा होता था। मीरब की आंखों का दर्द शाह के दिल तक पहुंच रहा था। अगर शाह के बस में होता तो कुछ ऐसे अल्फाज कह देता कि मीरब के दिल को राहत मिल जाती। कदे हवावांगे ना दुख ना वक जरा हौसला तारक जिंदगी दा हर पल तेरे नाम करांगे छड़ दुनिया दी गल मेरे नाल नाल चल हर वक्खा सुखा राह कट्ठे पार करांगे। तो सरगोशी में शायरी के बोल कहता हुआ मीरब को अपने सीने पर लिटाते हुए सर तकिया पर रख चुका था। अजहर खान की आंख खुली तो इसने खुद को एक बहुत बड़े बेसमेंट नुमा जगह पर पाया। इसे धुंधला धुंधला सब याद आ रहा था कि कैसे एसीपी शामिर मलिक ने होटल के रूम से आकर इसे कितनी चालाकी से किडनैप किया। किसी को पता भी नहीं चल सकता था कि अजहर खान को एसीपी किडनैप करके अपने साथ ले जा रहा है। अजहर खान साथी को इन्फॉर्म करना चाहता था कि मगर शामिर ने इसे पहले ही आगाह कर दिया था कि वो इसके अहलकारों के निशाने पर है। अजहर खान को अपनी जान बहुत प्यारी थी, इसलिए वो खामोशी से शामिर के कहने पर मुस्कुराता चेहरा लेकर इसकी गाड़ी में बैठ चुका था। गाड़ी में बैठते ही शामिर ने इसके कनपट्टी पर पिस्टल का बैक साइड जोर से मारा। इसका निशाना इतना पक्का था कि अजहर खान बेहोश हो गया और अब इसकी आंख इस बेसमेंट के अंदर खुली थी। मगर वो सारा खेल समझ चुका था, क्योंकि इसकी नज़र के सामने जांच पे नज़र पर्सनैलिटी लिए बैठा हुआ रोमांचा शायद इसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। टांग पर टांग जमाए हुए पाँव को बेचैनी से हिला रहा था। वो आंखों को मिलते हुए फर्श पर उठा के बैठकर रोमांचा को कहर आलूद नजरों से देख रहा था। इस कुत्ते की तरह इसे कुत्ते की तरह लाके बेहोशी की हालत में फर्श पर फेंक दिया गया था। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? वो होश में आते हुए बुखलाते हुए चीखा। शातिर इंसान, अपने जहन पर जोर दो, सब समझ में आ जाएगा। तुम जैसे कुत्ते की मिन्नत चढ़ाने को तो नहीं लाया गया होगा। साफ जाहिर है तुम्हारे गुनाहों का घड़ा भर चुका है, तो अब उसे फोड़ने का वक्त आ गया है। तुम जैसा गंद जैसी गंदगी फैला सकता था फैलाने। अब हम जैसे लोग सफाई करने का इरादा रखते हैं। रोमांच आंखी ने कड़कदार लहजे में कहा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा रोमान शाह, तुमने मेरी पीठ पर वार किया है। अजहर खान को अपनी जान के लाले पड़ गए थे। रोमान शाह का लहजा और तेवर बता रहे थे कि वो इस आज इसके गुनाहों की सजा देने का इरादा रखता है। तड़प अजहर खान तड़प चिल्ला जितना चिल्ला सकता है। पीठ पर वार तुम जैसे कुत्ते करते हैं और रोमान शाह पीठ पर वार करने वालों में से नहीं है। रोमान शाह सीने में सामने से वार करने वालों में से है। तुमने रोमान शाह को बहुत हल्के में ले लिया है, इसलिए भूल गया मैं अपने दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करता। तुम तो एक वक्त में खुद को अमीर बहुत अच्छा दोस्त कहते थे, मेरा बहुत अच्छा दोस्त कहते थे, तो मेरी इस फितरत को कैसे भूल गए? रोमांश अपनी जगह से उठ खड़ा होकर कटीले लहजे में बोलते हुए पाँव उसकी छाती पर रख चुका था। अजहर खान को मौत अपने सामने साफ नजर आ रही थी। तुमने मेरी बीवी की इज्जत पर दाव खेलना चाहा तो कैसे सोच लिया कि रोमांच चुप करके बैठने वालों में से है। शेर अगर धारना बंद कर दे तो इसका मतलब साफ होता है कि इसकी नजरें अपने शिकार पर हैं। बस वो सही वक्त का इंतजार कर रहा होता है। रुमान शाह अजहर खान के सीने पर पैर रखकर चिंघाड़ रहा था। इस तो क्या पता कि सीने पर वार करना किसको कहते हैं, जिसने अपने बहन को पहले सुल्तान साइगल के सामने पेश कर दिया और इसके बाद तुम्हारी जड़ों को कमज़ोर करने के लिए अपनी बहन तुम्हें चिपका दी। शाहमीर, जो थोड़ी दूरी पर दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए खड़ा खड़ा था, कड़कदार लहजे से कहता हुआ भारी कदम उठाते हुए करीब आने लगा। तुम दोनों मिले हुए थे? अजहर खान मुश्किल से कराहते हुए एसीपी शामिर मलिक की जानिब इशारा करते हुए कहा। शामिर पुलिस की यूनिफॉर्म में हाथ में पिस्टल लिए खड़ा था। इसके लबों पर जीत की मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। मत पूछो कि कौन किससे मिला हुआ है, तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम्हारी जड़ें तक हिल जाएंगी जब तो तुम
हमारा प्लान जानोगे। एक प्लान तुमने किया था सुल्तान साइकिल जैसे कुत्ते के साथ मिलकर, एक प्लान हमने किया था अपने यारों से मिलकर। तो देखो हमारा प्लान कितना पावरफुल है। जहाँ तक तुम्हारी सोच नहीं जाती वहाँ से हमारा प्लान शुरू होता है। तुमने सोचा कि तुम अपनी बहन को अपनी प्लानिंग के तहत मेरे घर भेज दोगे और मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मुझे पता भी नहीं चलेगा। रोमांचा की सोच वहाँ से शुरू होती है जहाँ तक तुम जैसे बहन बेटियां बेचने वालों की सोच जा ही नहीं सकती। शाहमीर ने आगे बढ़ते हुए इसे जोर से घूंसा मारते हुए कहा था। आ आ आ आ अजहर खान की दर्दनाक चीखें 20 मिनट में गूंज रही थी। तुम जैसा बहन बेचने वाला क्या जाने घर की इज्जतों की हिफाजत करने वाले कैसे होते हैं। ये देखो इस शेर को जिसने अपनी बीवी की इज्जत के लिए अपने इकलौते जिगर के टुकड़े को दाव पर लगा दिया। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा दूसरा चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स, उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे तो मैं ये नॉवल जल्दी कंप्लीट कर दूँगी, ठीक है। इसको ज़्यादा मैं खुद भी लंबा खींचना नहीं चाह रही, इसलिए मैं आप लोगों को इसको डबल डबल जो है वो एपिसोड्स दे रही हूँ। तो चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।